So I recently made this post. This is actually pretty true. Now let's understand from the very basic context that कि अगर आप product manager हो dating app के, if you don't know who is a product manager, basically someone जिसकी responsibility यही है कि लोग आपके product को use करें. तो आप अगर उस decision making में हो तो आपका काम क्या है? Your job is people should be using your product day in day out, right? And let's ask this very basic question. The existence of your product is अगर लोगों को अपने मैचेस मिले, सही मैचेस मिले, and if they move out of the product and if they uninstall the app, because why will someone uninstall the app? Either they are completely bored और मतलब कुछ फील नहीं आ रही है या सही मैचेस नहीं मिल रहे हैं या तो उनको कोई मिल गया है. अगर उनको कोई मिल गया है, it does justice to the vision of the product, बट आपका KPI हिट नहीं हो रहा है. आपका जो गोल है कि लोगों को ऐप तो यूज़ करवानी है. सो वुड यू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट so that everyone finds the one or something? I will leave that judgment to you. Let me know in the comments if any of you feel that hey, I will be doing that. Now ask yourself, what will you do? You will build an engine that makes you keep on using the app, right? So आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करोगे. नाउ डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिंपली मीन्स दैट आप अगर ऐप को यूज़ कर रहे हो, आई विल मेक श्योर दैट ओके यू डू नॉट गेट रेलिवेंट मैचेस एवरी टाइम. सो थोड़ा कभी कभी लो फील करवा दूंगा बाय नॉट गिविंग यू राइट मैचेस, कभी कभी ठीक फील करवा दूंगा एंड समथिंग लाइक दैट. Now, I generally feel most of the dating apps algorithm are biased, and if you do your own research, आपको दिख जाएगा कि basically what happens is it works on a snowball effect कह लो या something, that top 1% of the men or the women gets whole of the attention. And how does the signaling work? Let's say 5 लोग हैं और 5 लोग बहुत ही अच्छे दिखने वाले लोग हैं. उन 5 लोगों को दूसरे 5 लोगों ने मैच किया. And if the match is successful, the algorithm gets a signal that hey, these are good profiles. तो algorithm और लोगों को दिखाता है. Now, if every time you are prioritizing the same set of audience who are already getting attention, उनको लाइफ में मिल रही है, बाहर मिल रही है, ऐप पे मिल रही है, the problem that the dating apps should be solving is people who are not getting attention, not the people who already have a good ab या they look good, social validation circle में उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. Now I don't have the answer कि ये कैसे फिक्स हो सकता है. इट्स pretty चैलेंजिंग थिंग. बट व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम इज़, आप किसी भी डेटिंग ऐप के बैकएंड को अगर एनालाइज करोगे, ऑब्वियसली उन्होंने अपने एल्गोरिथम ओपन नहीं किए हैं, बट अगर एज अ यूज़र भी अगर एनालाइज करोगे, यू विल सी दैट द प्लेटफॉर्म्स प्रायोरिटाइज स्किन कलर, बॉडी टाइप, फेशियल सिमेट्री. ना सिमेट्री के ऊपर किसी दिन और बात करेंगे. इट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग टॉपिक, माई क्यूरियोसिटी टॉपिक एज वेल, दैट नेचर एंड ऑल्सो एल्गोरिथम्स हैव डिफाइंड symmetrical body structures and symmetry with beauty. ये that's in the human evolution. इसके ऊपर किसी दिन और बात करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. And also the quality of images. So if you have images in HD quality, आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा. And HD quality के images किसके पास होते हैं? People who have good money, they can invest in a good phone. If they have good phone, they understand how to take a good picture. Obviously the profile will look good. What is weird is this: majority of the dating apps पैसे कमाते हैं from 2 areas: subscription models और micro payments. Micro payments आपका हो गया कि टिंडर पे होता है ना, बूस्ट खरीद लो, छोटे 4 बूस्ट, एक बूस्ट खरीद लो और समथिंग लाइक दैट. बट द मेजॉरिटी ऑफ द मनी इज मेड फ्रॉम द men and women दोनों की सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग ना काफ़ी अलग होती है. कुछ ऐप्स आर कम्प्लीटली फ्री फॉर वेमेन एंड कम्प्लीटली पेड फॉर मेन, एंड कुछ ऐप्स लोअर प्राइसिंग करते हैं वेमेन को. एंड द रीज़न इज दिस एनालॉजी comes from your clubbing analogy. Clubs में women are asked to come for free because if in one area women are there, men will come. But the ulta will not happen. If in an area a lot of men are there, women will definitely not come. But jokes apart, that is how the majority of the money is made. The money is made from the men. The algorithms are designed in a very different way for men and women, and hence for men the delayed gratification keeps on happening, so that आप लोग जाके प्लान खरीदो. आपको ये बिलीव करवाया जाएगा कि अगर जब तक आप प्लान नहीं खरीदते हो फ्री में, तो आपको कोई मैच, अच्छा मैच नहीं मिलने वाला है. एंड ऐसे भी हुए हैं. आई हैव सीन केसेस वेयर अ मैन हैज सेंट a lot of requests. उसको लग रहा है कि उसने रिक्वेस्ट भेजा हुआ है,
एंड ही कीप्स ऑन फीलिंग कि अरे कोई मैच नहीं कर रहा है, कोई मैच नहीं कर रहा है, बट उस लड़की के पास कभी मैच गया ही नहीं है, रिक्वेस्ट गया ही नहीं है. सो माई हंच इज अगेन, दिस इज जस्ट अ पर्सनल जजमेंट, दिस इज जस्ट अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन दैट मे बी ऐप ने मुझे फील करवाया दैट रिक्वेस्ट भेज दिया है बट सामने वाले तक रिक्वेस्ट गया ही नहीं है. मे बी ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फ्रॉड है. ये पर्टिकुलर चीज़ जो हम बात कर रहे हैं कि यू मस्ट हैव सीन, एक टैब होता है और वो टैब में दिखाया जाता है कि दीज पीपल हैव मैच्ड विथ यू. मेन के साथ बहुत बहुत होता है, आई डोंट नो अबाउट द वुमेन. आई थिंक वुमेन को ब्लड नहीं दिखाया जाता. सो ब्लड प्रोफाइल दिखाया जाता है और कहा जाता है दे हैव मैच्ड विथ यू, एंड द हुक लाइन हियर इज पे राइट नाउ और सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो टू टॉक टू देम. And in 95% of the cases, either these profiles are fake or these profiles are those profiles जो एक टाइम पे थे, अभी डेड प्रोफाइल्स हो चुके हैं. वो प्रोफाइल आर, वी कॉल इट डोमेंट प्रोफाइल्स, मतलब द प्रोफाइल्स हु वेर एक्टिव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बट राइट नाउ दे जस्ट डोंट एग्जिस्ट. नाउ दिस इज अ बिगेस्ट हैक दैट इज मेड टू मेक रेवेन्यू. मुझे लगता है ये एथिकली completely wrong है. And also there is a huge case of your escort profiles, extortions, ब्लैकमेलिंग, impersonification happening. बहुत बड़ा ये एरिया है. इस एरिया के ऊपर आपको 1000 आर्टिकल्स मिल जाएंगे. लॉट ऑफ यंगस्टर्स फॉल फॉर इट. दिस पार्ट कैन बी प्रिटी ईजिली सॉल्व बाय डूइंग टू थिंग्स. या तो एक कस्टमर सर्विस आप बैठा हो जहाँ जो लोग मैनुअली बैठ के वेरीफाई कर रहे हैं आफ्टर द सेल्फी वेरिफिकेशन हैपेंड. एंड सेल्फी वेरिफिकेशन मेरे हिसाब से इज़ अ बिग फ्लॉ. मतलब सेल्फी वेरिफिकेशन टेक वाइज मुझे लगता है आराम से बाईपास किया जा सकता है. बट द राइट वेरिफिकेशन आई थिंक इज जो ट्रूली मैडी ने किया है. आई डोंट थिंक इट्स अ मैंडेटरी वेरिफिकेशन. I don't know. I have not used it since ages. But I guess what truly Madly does is they have a government ID verification कि अगर आधार कार्ड दोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा अप रैंक मिलेगा. बट आई थिंक इट शुड बी मैंडेटरी कि कोई भी गवर्नमेंट आईडी वेरिफिकेशन अगर आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ है, आई विल नॉट अलाउ यू टू माई ऐप. आई थिंक दैट शुड बी मैंडेटरी टू स्टॉप ऑल ऑफ दिस menace that is happening. एंड बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, मतलब ये क्या चक्कर क्या है कि the algorithm is designed in such a way that the success rate is high only when you purchase a subscription plan. And मैं अभी specifically men की बात कर रहा हूँ because for women I have always seen मतलब payments and revenue is not attached with the success rate primarily for the women because of obvious reasons. मतलब ठीक है, dating apps need more and more women to use them because वो होगा तभी men आएंगे, not the vice versa. And hence Bumble going women first is also a pretty interesting strategic move from a perspective of marketing कि उनको women acquisition के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा. So the cost of user acquisition, जिसको हम marketing या growth के टर्म में CAC भी बोलते हैं, remains pretty less here. And micro payments के बारे में हमने already बात कर लिया है. So what I will do is I'm thinking to do these threads that will be mind boggling for you. एंड अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है ये वाला फॉर्मेट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मुझे ये भी बताओ कि विच इज़ दैट पर्टिकुलर टॉपिक आई शुड पिक अप नेक्स्ट. एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स अगर आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा एंड यू हैड नो क्लू कि ऐसे होता है. एंड चीयर्स.